So let's start lecture number 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमने अभी तक न्यूटन्स लॉज में देख लिया। वी हैव स्टडीड ऑल द न्यूटन लॉ, ऑल तीनों न्यूटन्स लॉज हम लोगों ने पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिवली डिफाइन किया मोशन को ऑन द बॉडी वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स। सेकंड लॉ ने क्वांटिटेटिवली डिफाइन किया और थर्ड लॉ इज टॉकिंग अबाउट द अदर बॉडी विच इज़ अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम देखा, impulse देखा, और in the last lecture we were studying the pseudo forces we were studying. So it was nothing but a mathematical trick to so that we can apply the Newton's law in non-inertial frame of reference. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था और वी हैव स्टडीड सम क्वेश्चंस ऑन द कनेक्टेड बॉडीज। तो आज का जो लेक्चर का स्कोप है ये हमारा है कंस्ट्रेंट रिलेशन। Constraint relation हम already we were studying constraint relation, but now we are going to go more precise into the constraint relation. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा already, suppose एक ये block है, if you are pulling this block this side, so acceleration of this point is equal to acceleration of this point. ठीक है, so why this both the acceleration are equal? Because there is a constraint, there is a physical constraint के there is the string is not stretching, it is inextensible string, so इसके हर point का acceleration A होगा। same way ये जो यहाँ से टाइड अप होगा, सो सेम वे एम का भी एक्सीलेशन ए ही होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कंस्ट्रेंट, बिकॉज एम इज कंस्ट्रेंट टू मूव along द स्ट्रिंग। एम इज कंस्ट्रेंट टू मूव along द स्ट्रिंग इन दिस डायरेक्शन, सो दैट्स वाई। सो सेम वे वी हैव स्टडीड द मोशन के अगर दो ब्लॉक है एंड इफ यू आर पुशिंग इट हेयर, so this second block is constrained, to move in this direction because the normal force is coming in this direction. There's a physical limitation to move in this direction, so it will not move in this direction. इस direction में move नहीं करेगा, इस direction में move करेगा because there is a physical limitation in the vertical direction. Horizontal direction में it is getting normal from here, so that's why it is moving in this direction. The block 2 will move in this direction. So that is what is the constraint relation के बॉडीज़ जो हमारी होती हैं, जैसे इफ़ देयर आर मल्टीपल बॉडीज़ विच आर कनेक्टेड थ्रू सम स्ट्रिंग और थ्रू सम पुली और थ्रू द सरफेस, इफ दे आर कनेक्टेड, तो उनके बीच में वी हैव टू गेट वी हैव गॉट अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ फिजिकल लिमिटेशन। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पुली का कंस्ट्रेंट रिलेशन कि हाउ द पुली, अगर दो मासेस हैं या मल्टीपल पुलीज आर कनेक्टेड विद मल्टीपल मासेस, तो उनका आपस में रिलेशनशिप में क्या, उनके आपस में मोशन में क्या रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप इन अ वेज। अगर दो सरफेस हैं, इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ वेज, सो व्हाट इज ऑन द सरफेस, इफ दे आर कनेक्टेड ऑन अ सरफेस, तो उनके बीच में क्या कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप है। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द पुली वेज सिस्टम। We are going to study the pulley wedge system, and in the pulley wedge system, pulley wedge is moving, and with that moving, the pulley or blocks connected हैं, so what is the constraint, what is the relationship coming with multiple bodies which are under the motion. और अगर टाइम बचा तो we'll cover up the general constraint today, or otherwise we'll cover up the general constraint in the next lecture. So most precisely we are going to cover up these three. अगर टाइम थोड़ा बहुत बचा तो we'll see it. Okay, so let's now jump into the precise details of constraint relations. ठीक है, constraint relationship, as we have seen, it's a physical restrictions on a body because the string cannot stretch. ठीक है, तो string, अगर ये string है तो एक string की ये acceleration अगर a1 है तो इसकी भी acceleration a1 होगी, इस point की भी acceleration a1 होगी. So all this point will be having the same acceleration because still string cannot stretch. So that's a physical restriction. Same way this is rod cannot bend. So if the rod is there, so same way जो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, सेम इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, बिकॉज इन दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, इन दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, सो दैट्स अ फिजिकल रिस्ट्रिक्शन इन द रॉड। ठीक है, सेम वे when the motion are connected and restricted, they make a relationship between their motion, so that motion which we are going to study up here. ठीक है, so constraint relation means के the body is not free to move the way it wants. Suppose a body is kept on this table, so the block cannot move in this direction. ठीक है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन नहीं हो सकता, ब्लॉक का मोशन इंडिपेंडेंटली इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ब्लॉक कैन मूव हेयर और इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, बट इस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ कंस्ट्रेंट, दिस टेबल इज अ कंस्ट्रेंट टू द ब्लॉक, द टेबल विल नॉट अलाउ द ब्लॉक टू मूव डाउन। ठीक है, सेम वे देन वी आर हैविंग कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप एक और तरीके से हमारे को चाहिए होता है, बिकॉज विद द न्यूटन्स लॉज
ठीक है. With the Newton's laws, if we are applying a Newton's law in some motion with multiple bodies, so with the Newton's laws we can get some equations, but those equations are not will not be sufficient to derive all the unknowns. Suppose we'll see it in the example. Okay, इस example में this is my pulley system and this is my mass. These both are masses. It is coming down with acceleration a1 and it is coming down with acceleration a2. ठीक है. Now we are having three unknowns here. This tension is unknown, this tension is unknown, this a1 is unknown and a2 is unknown. The three unknown are there. So Newton's laws you can apply it on this body. ठीक है. दो इक्वेशन आ जाएंगी विद द न्यूटन्स लॉ. आप इन दोनों बॉडी पे लगा दोगे. ठीक है. इन दोनों बॉडी पे आपने एफपीडी बना के न्यूटन्स लॉ लगा दिए. दो आपके इक्वेशंस आ गए. बट दिस थर्ड अननोन, this a1 a2, this we need to have one more relationship. So that relationship between a1 and a2 we get it from the constraint relationship, that this mass and this pulley is being constrained to move with this string, and then this mass is constrained to move along the pulley with this string. So they are constrained together. Their motions are not independent, they are interlinked. So with this constraint relation you could able to get the third equation. So तीन इक्वेशन हमारी आ जाती हैं, and then we could able to solve the problem. So constraint relationship से we could able to get one more equation which is going to help us in catering all the unknowns that we are having. ठीक है. So जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी देखा, तीन अननोन है. न्यूटन्स लॉस हम लोग इस बॉडी पे लगा देंगे, वी कैन गेट टू इक्वेशन फ्रॉम द न्यूटन लॉ. थर्ड इक्वेशन आएगा जब हम a1 और a2 के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कंस्ट्रेंट रिलेशन. ओके. सो third unknown will come from the constraint relation between pulley and the mass. Okay. Now in detail we are going to study pulley four constraint relation. One is pulley constraint relation, wedge constraint relation, pulley and wedge, and the general. So we are going to go deep into each and every one, and we are going to study through multiple ways to solve them, and we'll apply as per the situation we'll apply each and every way that we are solving. ठीक है. There are multiple methods to solve pulley wedge और pulley wedge and wedge system को. बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के, but as per the situation required we'll solve them with that manner. But एक method है which is called a virtual work method, which we usually use it, which is like a faster method, but we have to develop an understanding of work in that. So I'll give you a brief on that. Okay. But we'll start now. Constraint relation. Okay. So we'll start with the pulley constraint. ठीक है. pulley constraint देखते हैं पहले. So pulley constraint में this is my pulley 1, this is my pulley 2, this is my block 1, block 2. So if I say this block is going up and this block is coming down and this tension is there, so three unknowns are there and three equations are there. Now I have to find out the relationship between this A and AB. ठीक है. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. ठीक है. पहला तो तरीका है कि विजुलाइज द मोशन, कि इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मूव करेंगे, कि इसको ये अगर इसको छोड़ दिया हमने तो इट विल गो अप. ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, एंड बिकॉज दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग आर कनेक्टेड, ये ऊपर गया तो ये स्ट्रिंग नीचे आएगी एंड दिस पुली विल कम डाउन हेयर. ठीक है. द पुली विल कम डाउन देयर. अगर पुली नीचे आएगी तो दिस रोप विल कम डाउन एंड दिस बी विल कम डाउन हेयर. ठीक है. और पुली कितना नीचे आ जाएगी, ये दिस टू टाइम्स ऑफ दिस एक्स इट विल कम डाउन. ठीक है. सो दैट इज व्हाट के वी विजुलाइज देयर मोशन. ठीक है. इनका विजुलाइज करेंगे इनका मोशन का. थ्रू दिस वी कुड एबल टू डू. बट इफ यू हैव मल्टीपल पुलीज एंड मल्टीपल ब्लॉक्स ना, देन दिस सिस्टम इट इज़ डिफिकल्ट टू विजुलाइज. 1 और 2 पुली हैं और 1-2 ब्लॉक हैं तब तक का ठीक है. बट I'll just give you an idea कि कैसे विजुलाइज होता है. बट when you have lot of pulleys and lot of masses ना, then it is a bit difficult to go along with this method. But I'll give you an example. I'll give you an gist of this method also. So हमने क्या किया यहाँ पे, A suppose we leave the system. A क्या किया, ये मूव ऊपर कर गया A थोड़ा X. ठीक है. जब A ऊपर किया तो this is connected, this is constrained to move. ठीक है. सिंगल स्ट्रिंग है. सो दिस पुली विल कम डाउन, दिस पुली विल कम डाउन, दिस पुली हैज़ कम डाउन. ये पुली यहाँ से पहले यहाँ पे थी, इट हैज़ कम डाउन अप टू दिस लेवल. सो पुली यहाँ से यहाँ तक कितना मूव कर गई, दिस एक्स मूव कर गई. जब ये पुली एक्स मूव कर गई तो यहाँ से जो रोप है दैट रोप कम डाउन, यहाँ पे एक्स कम डाउन और ये एक्स. तो बिकॉज पुली कम डाउन अप टू दिस लेवल ना, यहाँ से यहाँ पे थी और यहाँ से यहाँ पे आ गई. सो दिस डिस्टेंस एक्स इट मूव. बट ये जो रोप है, रोप कितना नीचे आ गई, ये एक्स ट्रेवल करी होगी और ये एक्स. सो दैट मीन्स दिस इज 2x इट ट्रेवल. 2x इट ट्रेवल. सो x के ऊपर जाने से, a के x ऊपर जाने से मेरा b 2x नीचे आ रहा है. ठीक है.
So that is what the relationship. Now x, if I differentiate it, it will come into velocity. If I double differentiate it, it is an acceleration. So we can say acceleration of b is 2 times the acceleration of a. ठीक है, अगर acceleration x time ऊपर जा रहा है, my b is coming 2 times down. ठीक है, so acceleration of a is acceleration of b is 2 times of acceleration of a. ठीक है, so that is how you have to visualize, but there's a limitation for this method, because this method, if multiple pulleys are there and multiple blocks are there, तो उसको visualize करना ना बहुत difficult हो जाता है. तो इसलिए इस method को हम लोग इतना डिटेल में नहीं यूज़ करेंगे. We'll use other methods also, but to give an idea कैसे visualize होता है, that you have got it from here. Okay, so एक another method होता है that we are going to see in questions also, but now I'll just give you an idea for that. तो एक method होता है which we call कि ये जो लेंथ है ना पूरी स्ट्रिंग की, this is all, ये दोनों, ये जो पूरी लेंथ है स्ट्रिंग की, ऊपर वाली स्ट्रिंग दिस स्ट्रिंग 1 एंड दिस स्ट्रिंग 2. ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी लेंथ है दैट इज़ अनचेंजेबल, दैट इज़ इनएक्सटेंसिबल. तो इनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, जितना भी मूवमेंट होगा, अगर ये वाली पुली भी मूव कर रही है, ये पुली भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, कोई भी कितना मूव कर ले, बट जो इसकी लेंथ है ना, अगर सपोज इसकी लेंथ L2 है और इसकी लेंथ ये L1 है, तो ये L1 और L2 में डेल्टा कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 विल बी 0. ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा इनकी लेंथ में. सो दैट लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई now while solving the questions. So that is also one way that we are going to use more often in solving our problems in the constraint relation. तो ये वाला logic भी हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करेंगे. So I'll explain it here. Plus in the questions also, future में questions हम लोग इसी lecture के आगे हम लोग questions देखेंगे, तब in detail I'll tell that method also again. So यहाँ पे इस मेथड में क्या करते हैं ना, so हमारे जितने भी सेगमेंट हैं यहाँ पे इसके, वी टेक ऑल 4 सेगमेंट. तो यहाँ पे कितने सेगमेंट है, 1 2 3 4 पूरे सेगमेंट ले लेंगे. तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इनको पॉइंट्स में हम लोग ब्रेक कर देंगे. 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8. ठीक है, ऐसे ब्रेक कर देंगे. नाउ मेरा मोशन क्या हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है ए का, पुली इस कमिंग, जो ए का मोशन हो रहा है वही सेम मोशन मेरा पुली का होगा, जिससे ए मोशन से ऊपर जाएगी. सो इट इज़ गेटिंग जम्बल्ड अप हेयर. आई हैव डन दिस मेथड हेयर. आई विल एक्सप्लेन इट इन द लेटर पार्ट. हेयर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस मेथड, आई विल एक्सप्लेन हेयर ओनली ना. सो ठीक है, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस मेथड को. बेसिकली हमारा ये वाला जो हम मेथड अप्लाई करेंगे सेगमेंट वाला, उसमें ये देखते हैं कि हमारी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, उसका रेट ऑफ चेंज इज 0. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, दैट इन द कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मेथड. ओके, सो एक और मेथड देखते हैं पहले. इट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल वर्क मेथड. सो वर्चुअल वर्क मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, कि ये वाला बहुत फास्टर मेथड है टू सॉल्व ऑल द कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, एंड अच्छा मेथड है ये. तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस मेथड ओनली, वर्चुअल वर्क मेथड. तो वर्चुअल वर्क मेथड होता क्या है, वी इमेजिन ए टाइनी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो सपोज वी इमेजिन कि ये हल्का सा एक्स ऊपर गया. ठीक है, ये बिकॉज देयर इज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन दिस स्ट्रिंग्स, सो इट विल फॉलो, इट विल नॉट वायलेट द कंस्ट्रेंट. सो अगर ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये एक्स नीचे आएगा. सो इट विल फॉलो द, इट विल नॉट वायलेट द कंस्ट्रेंट. सो वी इमेजिन अ टाइनी डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वी इमेजिन अ टाइनी डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैलकुलेट द टोटल वर्चुअल वर्क दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, वाई इट इज इक्वल टू 0, टोटल वर्चुअल वर्क वी कंसिडर इट 0 बाय द रियल फोर्सेज. इन आर केस we consider the work done by all the tensions. All the tension in the string is 0. So suppose ये this is my pulley system. So ये टेंशन हो गई, ये टेंशन हो गई, ये टेंशन हो गई, ये टेंशन हो गई. So all this टेंशन जितना भी है ना, मेरा टेंशन का जितना भी वर्क डन होगा that is equal to 0, because of tension वर्क डन. पहले वर्क डन देखते हैं. वर्क डन is nothing but my force into displacement. ठीक है, वर्क डन is nothing but the force into displacement, or that force should be in the direction of displacement. So for instance, अगर ये मेरा this is my force and the displacement is happening here, so I can say, so force is F cos theta into this, so my work done is F cos theta into S. ठीक है, so I can say it is W is equal to F dot ds. तो इन दोनों के बीच का एंगल जितना होता है, तो I can write it down, W is equal to Fs cos theta. So this angle also needs to be taken care of. अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर यही मेरी F की डायरेक्शन है, यही S की है, तो I can take angle 0. We are going to study in detail in work power energy when we are going to do, but this method we are using in constraint relation, so इसलिए मैं अभी थोड़ा explain कर रहा हूँ. तो वर्क डन क्या होता है हमारा, F into S. F into S क्या होता है, Fs cos theta. ठीक है, that is my work done. That is what we are going to use it. और इसके अंदर F क्या है, फोर्स.
एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद दैट फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन का हमारा जो हम पुलिस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है ना, हमारा टेंशन, बिकॉज ऑफ टेंशन द वर्क डन इज जीरो, बिकॉज टेंशन की वजह से देर इज नो चेंज इन द स्ट्रिंग लेंथ, बिकॉज द आर स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल। तो फाइनली जितना भी वर्क डन होगा हमारा, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वी नो ना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, अगर ये यहाँ से एक्स ऊपर मूव करेगा, ये एक्स नीचे आ जाएगा, सो ओवरऑल नेट वर्क डन शुड बी जीरो। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स, ऑल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो in this case. ठीक है, but there are certain cases when the tensions you could not able to find out the tension may be different, तो उस cases में ये method नहीं apply कर सकते। there we are going to use the segment method that we are going to see, but ये method आपका 70 से 80% केसेस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये मेथड कैसे यूज़ होता है। सो आई नो पहले तो हम लोग टेंशन निकालेंगे, सारी स्ट्रिंग्स में कितनी कितनी टेंशन है। टेंशन का हमने देखा था, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे बी है, इसकी टेंशन यहाँ लगेगी, ये पुली है, इसमें टेंशन यहाँ पे लगेगी नीचे, इसमें टेंशन अवे और यहाँ पे। और हमने देखा था पुली इज़ मासलेस पुली हो गई, तो दैट मीन्स इसका जो होगा ये 2T। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अभी मैं टेंशन ले लेता हूँ, दिस इज़ T। ठीक है, T2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो यहाँ पे T2 माइनस 2T इज इक्वल टू mass of pulley into acceleration of pulley, but mass of pulley is 0, so I can say T2 is equal to 2T। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है मेरा दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों T के बराबर ये आ जाएगा 2T। ठीक है, दैट इज़ इन द केस ऑफ मासलेस पुलीज, वी कैन अप्लाई दिस थिंग। अगर मास आ जाता है पुली में, वी कैन नॉट टेक दैट दिस मूविंग अप इज 2T, ये दोनों इट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस अगर मास कुछ होता है पुली में। ठीक है, इन दैट केस वी कैन नॉट हैव इट, बट हेयर वी आर कंसिडरिंग इट्स अ मासलेस पुली। सो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे टेंशन T आ जाएगी, तो ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है, सो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह T रहेगी। तो इसकी T यहाँ पे है, तो ऊपर आ गई इसकी 2T, सो सेम यहाँ पे 2T रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें 4T आ जाएगी। ठीक है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर बिकॉज वी हैव टू सी द टेंशन अराउंड दिस। तो अब मैं देखता हूँ पहले T में क्या है, ये मेरी टेंशन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सपोज आई कंसीडर द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। सो मैंने क्या बोला था, वर्क डन इज माई work done by tension is equal to 0 in our because my string is inextensible, so work done by tension is 0। ठीक है, so now we'll see कि इसका work done कितना है by this tension कितनी है यहाँ पे 2T, so I'll take 2T into ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, so S into cos थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, cos 0 डिग्री, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, फिर सेकंड वाले केस में क्या आ गया, मेरी टेंशन ये है बट इट इज़ मूविंग डाउन, टेंशन इज अपवर्ड मूविंग डाउन, सो थीटा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, सो दैट्स वाई प्लस T इंटू एस, बिकॉज ये जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। सॉरी, वी हैव टू फाइंड इट आउट, सो विल डू इट अगेन। सो दिस इज़ माई 2T और यहाँ पे मेरा सपोज ये मूव किया x और ये टेंशन इसके ऊपर है, ये मूव किया y। ठीक है, ये मूव किया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये y मूव किया। ठीक है, सो यहाँ पे जो इसका वर्क डन आएगा बिकॉज ऑफ दिस इज 2T इंटू एक्स कॉस ऑफ 0 डिग्री बिकॉज एंगल 0 है, प्लस यहाँ पे क्या है T इंटू वाई और कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, T से T कैंसिल, दैट इज 2x इज इक्वल टू y, बिकॉज दिस विल बी माइनस, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप आ गई x इज इक्वल टू वाई, सो ए वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ax। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हेयर ऑल्सो। ठीक है, सो इसकी स्पीड विल बी स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 2a, हेयर ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ दिस इज 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ a। ठीक है, यही हमने किया हुआ है यहाँ पे 2T इंटू x1, इस डायरेक्शन में टेंशन हो गई 2T, वी हैव कैलकुलेटेड 2T इंटू ये x डायरेक्शन में x1 मूव कर रहा है, सेम वे इसमें T इधर है मेरा, x2 नीचे है, तो दिस इज माइनस Tx2। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेंशन वर्क डन बाय टेंशन इन आर स्ट्रिंग्स इज 0 बिकॉज आर स्ट्रिंग्स इज इनएक्सटेंसिबल, ये 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से T से T कैंसिल, तो वेलोसिटी में रिलेशनशिप ये आ गया, x में रिलेशनशिप वेलोसिटी में, और इसका डबल डिफरेंशिएट कर दिया इसका, तो मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप आ गया a2 इज इक्वल टू 2a1। सो वर्चुअल वर्क मेथड विल यूज इट in most of our cases because it is faster also, it gives us result better than visualizing this and doing the calculations here। ठीक है, so let's move on to the another one and we'll see it with the virtual work method। ठीक है,
सो विल सी कि अगर यहाँ पे देखो 3 पुलीज हैं, 3 वेट्स हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू विजुलाइज इट विद द फर्स्ट मेथड कि इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, इसको नीचे ले जाऊँ, फिर इसको नीचे ले जाऊँ या इसको ऊपर ले जाऊँ. इट इज़ डिफिकल्ट टू विजुलाइज दैट. सो हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. पहले क्या करेंगे हम लोग, टेंशन, वी स्प्लिट अप द टेंशन. सो एक स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहती है, तो इस वाली स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी पूरी स्ट्रिंग में. ठीक है. सो हेयर टी आ जाएगी, और यहाँ पे बिकॉज दिस इज मासलेस, तो यहाँ पे जो 2t होगा, ये 2 होगा, t होगा इधर, t होगा इधर, तो नीचे आ जाएगा मेरा 2t. ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा 2t. तो ये a को जो टेंशन मिल रही है इधर, टेंशन आ रही है बिकॉज ऑफ a इज 2t. ठीक है. नाउ विल डू कि अगर a ऊपर जा रहा है और b नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t इंटू एक्स ए, बिकॉज ऊपर जा रहा है, इट इज़ एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है. यहाँ पे टेंशन ऊपर है और मूवमेंट इधर हो रहा है, तो माइनस टी इंटू एक्स बी. ठीक है. कॉस थीटा 180 डिग्री है, माइनस टी इंटू एक्स बी, ये आ गया. एंड हेयर वी गॉट अ रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप 2a. तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ b. दिस इज माई रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द एक्सेलेरेशंस. ठीक है. तो बहुत फास्ट है ये मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, बट देयर आर केसेस विल सी कि दिस मेथड विल नॉट बी यूजफुल अगर टेंशन चेंज हो जाती है. सो विल सी. एक आध क्वेश्चन है हमारा, हम लोग देखेंगे उस केस में भी. अगर ये वर्क नहीं करेगा देन विल वर्क इट विद द सेगमेंट मेथड, सेकेंड बेस्ट मेथड. ठीक है. और उससे आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. वी डोंट हैव टू गो विद द बेसिक लेवल ऑफ वर्किंग्स जो हमने सबसे पहले देखी थी. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं. इस क्वेश्चन में भी विल अप्लाई द same tension work method. So sum of the work done by all the tension is equal to 0. That is what we are going to do here. तो इसको हमने एज्यूम कर दिया, ये ए से ऊपर जा रहा है, ये ए बी से ऊपर जा रहा है, और ये ए सी से नीचे आ रहा है. ठीक है. ये हमने एज्यूम कर लिया. तो हम जो फाइनल जो भी आएगा दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ, आपस में अगर मेरे साइन अगर ऊपर नीचे भी होंगे तो फाइनल रिजल्ट में दैट विल बी एडजस्टेड. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. हमने ये एज्यूम कर लिया. नाउ विल स्प्लिट अप द टेंशन. टेंशन हमने देखा एक स्ट्रिंग में, ये पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगी. ठीक है. तो यहाँ पे भी टी आ जाएगी, इधर भी टी आ जाएगी, इधर भी टी आ जाएगी, इधर भी टी आ जाएगी, एंड इधर भी टी आ जाएगी. बट इधर क्या होगा, इन दोनों का सम आएगा, दैट इज़ 2t. ठीक है. सो मेरा b के ऊपर 2t, और b कितना ऊपर ही मूव कर रहा है. सो आई कैन से 2t इंटू ए बी, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम है और टेंशन भी सेम है. यहाँ पे ए बी लिख दिया, बट इट इज़ एक्स बी, और उसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए बी हो जाता है, वो एक्सेलेरेशन आ जाती है. अब ए में देखते हैं. ठीक है. ए में कितनी टेंशन है, टी. ठीक है. दिस टेंशन इज टी इन ए, और ये डायरेक्शन ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो टी इंटू ए. अब सी में देखते हैं. सी क्या है, नीचे मूव कर रहा है और टेंशन ऊपर है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री, एंड विल से माइनस टी इंटू ए सी. सो दिस इज माई कंस्टेंट रिलेशन. नाउ आई विल रिमूव द टी फ्रॉम ऑल थ्री, एंड दिस इज माई कंस्टेंट रिलेशनशिप. ए प्लस 2ab इज इक्वल टू ए सी. दिस इज माई कंस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 एक्सेलरेशंस फॉर दिस 3 masses. Okay. So with the virtual work method, we have solved it quite an easy manner, right? So next we'll see this example. In this we will see here virtual work method will not going to work, and and we are going to see one more for our faster calculation. We'll see एक और फॉर्मूला देखेंगे कि अगर हमारे को डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, तो हाउ वी कैन अप्लाई दैट फार्मूला एंड गेट द आंसर. तो इसमें देखेंगे, इस वाले केस में विल सी दैट डायरेक्ट फार्मूला. ठीक है. बट दैट डायरेक्ट फार्मूला विल बी डिराइव फ्रॉम द सेम वे विच यू आर गोइंग टू सी इट हेयर. ठीक है. लेट्स सी. सो इस केस में देखते हैं कि हाउ आर टेंशन थिंग विल नॉट गोइंग टू वर्क. दिस आर वर्चुअल वर्क प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड वी हैव टू सी विद another way we have to visualize it, that is we call a segment way. ठीक है. So let's see. So यहाँ पे हमने देखा कि we have to find out the acceleration इन दोनों के बीच में. we have to find out the relationship, and we have to find out the acceleration of this pulleys. ठीक है. इन दोनों पुली की acceleration बतानी है, P1, this is my P1, P2, और इन दोनों की acceleration बतानी है, this is my A1, A2. इन चारों की मेरे को accelerations बतानी है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले दिस M1 को ऑब्जर्व करते हैं. M1 को सपोज इट इज़ मूविंग विथ A1 ऊपर. ठीक है. दिस A1 से ऊपर जा रहा है, एंड M2 इज़ कमिंग विथ A2 डाउन. ठीक है. नाउ इट इज़ मूविंग अप, इट इज़ मूविंग डाउन. नाउ लेट्स फर्स्ट सी कि वर्चुअल वर्क मेथड विल अप्लाई द टेंशन. ठीक है. तो हमें पता है कि अगर एक स्ट्रिंग में द टेंशन विल बी सेम. ठीक है. एक स्ट्रिंग में द टेंशन विल बी सेम. सो यहाँ पे टेंशन T हो गई. ठीक है. यहाँ से ये भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे 2T हो गई, और यहाँ पे भी T आ गई. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे अगर T है, ये दोनों T है, तो इट शुड बी 2T हेयर. ठीक है.
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे 2T यहाँ पे, बिकॉज वन स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो सब में T होनी चाहिए, ये भी T होनी चाहिए, बट यहाँ पे अगर हम देखें विद आवर मासलेस पुली सिस्टम, सो यहाँ पे T, तो it should be 2T. So that means it is not at all possible. So one scenario in this is either tension is equal to 0, one scenario, then only it is possible that this tension will be equal to this tension. Then in that scenario only it is possible. Otherwise इधर भी T है मेरा और इधर भी T है, और with this relationship के पूरी string में मेरा T रहेगा, तो यहाँ पे भी मेरा इसमें T आ रहा है. So that is not at all possible. T cannot be equal to 2T. This is not possible, and this is only possible when T is equal to 0. जब मैं T is equal to 0 रख दूंगा, then it is possible, ठीक है, then it is possible. So in this case tension is 0, so we cannot apply the virtual work method. So we have to go through the segment method, ठीक है. सो विल सी टेंशन हैज़ कम डाउन टू बी 0. अगर टेंशन 0 है, सो विल सी कि इस पे विल अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ. सो सपोज इट इज़ मूविंग विद दिस डायरेक्शन A1, सो T माइनस इस पे सपोज मैं टेंशन T ले रहा हूँ T1, और यहाँ पे टेंशन T2. सो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन इज़ 0, ठीक है, इन होल द स्ट्रिंग टेंशन इज़ 0, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ माई T. सो T इज इक्वल T कम्स आउट टू बी 0, एंड सो T 0 है, तो ये वाला मेरा इट इज़ नथिंग बट 2T. सो दिस विल ऑल्सो गेट 0, T2 विल ऑल्सो गेट 0, ठीक है. सो नाउ इस पर मैं लगाता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज़ अगर ये इस डायरेक्शन में A1 से मूव कर रहा है, सो T माइनस इसका वेट नीचे M1G, तो T माइनस T1 माइनस M1G इज इक्वल टू MA1, ठीक है. ये न्यूटन सेकेंड लॉ लग गया इन वाई डायरेक्शन में. सेकेंड में इसमें लगाऊंगा मैं न्यूटन सेकेंड लॉ, इट इज़ MG M2G माइनस T2 इस डायरेक्शन में, T2 इज इक्वल टू MA2. यहाँ पे मुझे पता है दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0. सो यहाँ पे मेरा आ गया A1 आ गई मेरी माइनस G, सो A1 आ गई मेरी माइनस G, ठीक है, और A2 आ गई यहाँ से मेरी प्लस G, ठीक है. सो दे आर, इट इज़ फ्री फॉलिंग. A2 नीचे गिर रहा है G से, और A1 ऊपर जा रहा है माइनस G से, ठीक है. दिस इज़ माई A1 एंड A2, ठीक है. दिस इज़ माई A1 एंड A2. सो A1 इज इक्वल टू माइनस A2, और एक आ रहा है G, दूसरा आ रहा है माइनस G, ठीक है. नाउ वी हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पुली and this pulley velocity. We have to find out. Now this pulley is there, so this pulley is this pulley, ये वाली जो पुली है, इसका जो एक्सेलेरेशन, सपोज दिस पुली इज कमिंग डाउन विद एक्सेलेरेशन A2, सो ये पुली इससे कनेक्टेड है एंड दिस इज कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग. सो इसका जो भी एक्सेलेरेशन होगा पुली का, दैट शुड बी इक्वल टू इसका जो एक्सेलेरेशन होगा. सो वी कैन से एक्सेलेरेशन ऑफ AP2 पुली 2 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मास 2, ठीक है, बिकॉज दिस पुली इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस मास. तो जितना मास ये नीचे आ रहा होगा उतना ही पुली नीचे आ रही होगी. वी कैन से एक्सेलेरेशन ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू G, is equal to G, because my acceleration of 2 is my G. So this pulley will also be coming with G, ठीक है. This pulley will also be coming with G, right? Okay, so अब हमारे पास तीनों आ गई, A1, A2 एंड AP2. अब हमें इसका रिलेशनशिप निकालना है P1 का. सो वर्चुअल वर्क मेथड से नहीं होगा. व्हाट वी हैव टू डू विद द सेगमेंट मेथड. नाउ सेगमेंट मेथड में क्या होता है ना, कि वी टेक पुली, वी टेक के सपोज वी टेक सेगमेंट्स ऑफ आवर स्ट्रिंग. तो पहला से सपोज ये एक सेगमेंट हो गया मेरा स्ट्रिंग का, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया. ये लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है इसकी और इसकी दोनों की सेम है. इसका ये जिस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है वो भी इस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है M2. सो ये दोनों सेम है. सो आई टेक दिस ओनली, ठीक है. सो नाउ सपोज आई हैव टेकन 4 सेगमेंट, इस 4 सेगमेंट ले लिए, ठीक है. इसमें क्या होगा मेरा, ये X1 मूव कर रहा होगा, सपोज इधर पुली आई एम एज्यूमिंग इट इज़ मूविंग XP1 ऊपर मूव कर रही है, ठीक है. यहाँ पे मैंने ले लिया XP1 ऊपर मूव करी पुली, XP1, ठीक है, ये ऊपर मूव करी पुली. सेम X1 ऊपर मूव किया, और मैंने देखा ये पुली है, दिस पुली इज़ कमिंग डाउन XP2, ठीक है. दिस पुली इज़ कमिंग डाउन XP2, ठीक है. सो दिस पुली इज़ मूविंग अप XP1. ये जो इसका मोशन हो रहा है दैट इज़ मूविंग अप सपोज आई एम टेकिंग X1, ठीक है, X1, और इस पुली का मैं मोशन ले रहा हूँ XP2. और जो इसका मोशन, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज दोनों सेम है हमारे, ठीक है, इन दोनों का सेम है. तो हम केवल ये वाला सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं इतना, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या किया, पहले सेगमेंट्स कर दिए 1 2 3 4, ठीक है. अगर और भी होते तो हम और सेगमेंट कर देते, बिकॉज हमारे पास स्ट्रिंग के 4 सेगमेंट हैं अभी, तो हमने 4 सेगमेंट कर दिए. और फिर देखा ये वाले, ये जो है ये और ये सेगमेंट इस पुली से कनेक्टेड है. सो वी टेक्स पुली इज मूविंग अप विद XP1. इट इज़ वी आर डूइंग इट, वी आर टेकिंग एन एजम्पशन, XP1 ऐसे ऊपर जा रही है. सेम वे ये वाली स्ट्रिंग
इससे कनेक्टेड है, सो दिस वी कैन से दिस मास इज गोइंग अप विद x1. Now these two segments are connected with this pulley, so we can say pulley is coming down with xp2. ठीक है, ये हमने देख लिया. Now the next thing is कि we just assign the numbers of each and every segment. x इसको मैंने 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ये 1 और 2 सेगमेंट हो गया. पूरे सेगमेंट का 1 और 2 पॉइंट, ये 3 4 हो गया. ठीक है, ऐसे मैंने 5 6 कर दिया. ठीक है, 7 8 कर दिया, तो 4 सेगमेंट 8 पॉइंट्स. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम इनका सबका, मुझे पता है दिस इज़ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, सो इन सबकी जितनी भी टोटल होगी मेरी ना, जितना भी टोटल होगा मेरा डेल्टा एल विल बी सेम. अगर मेरा ये x1 इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से कुछ चेंज आएगा इसमें लेंथ में, और p1 इधर मूव कर रहा है तो नेट चेंज कुछ आएगा. सपोज ये मेरा लेंथ है. ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरा इधर मूव कर रहा है x1, और ये वाला पॉइंट मेरा इधर मूव कर रहा है x2, जिसकी वजह से कुछ डेल्टा एल चेंज आएगा ना इसमें. तो डेल्टा एल कितना होगा, x1 माइनस x2. तो इसमें जितना भी चेंज आएगा, सपोज यहाँ पे x1 मूव किया x2, सो मैं कह रहा हूँ पूरी स्ट्रिंग में हमने देखा कि पूरी स्ट्रिंग में जितना भी चेंज आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0. जो डेल्टा एल मेरा पूरा भी आएगा ना बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज द स्ट्रिंग्स इज इनएक्सटेंसिबल. तो हम क्या करेंगे, हर एक सेगमेंट में डेल्टा एल निकालेंगे इसका, कि हर एक सेगमेंट का डेल्टा एल कितना है, कितना बिकॉज ऑफ दिस मोशन xp1 x1 एंड xp2, इन तीनों के मोशन की वजह से मेरा डेल्टा एल कितना आ रहा है इन चारों में. जितना मेरा डेल्टा एल आएगा वी हैव टू पुट इट 0. वंस वी पुट इट 0 वी गेट ए कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप. दैट इज़ व्हाट द लॉजिक हियर इज. ठीक है, पहले ये वाला सेगमेंट देखते हैं. इस सेगमेंट में मैंने 2 पॉइंट लिए 1 और 2. ठीक है, इस सेगमेंट में मेरे पास दो मूवमेंट्स हैं xp1 एंड ये दोनों पॉइंट को दो मोमेंट हो रहे हैं ना इस पॉइंट पे. एक तो ये हो रहा है x1 मोमेंट. ठीक है, दिस x1 मोमेंट इज हैपनिंग, और दूसरा इससे कनेक्टेड ये xp2 है. तो 2 मोमेंट हो रहे हैं. अब ये x1 मोमेंट जो होगा इस लेंथ को क्या करेगा, कम करेगा. सो वी कैन से कि ये वाला ले लिया मैंने डेल्टा 1 एंड 2. ठीक है, इसमें क्या करेगा, x1 जो है इस लेंथ को कम करेगा. आई कैन पुट इट डाउन माइनस x1. और यहाँ पे क्या है, ये जो है xp2 ये लेंथ को बढ़ाएगा, 1 और 2 की बीच के लेंथ को वो xp बढ़ाएगा. अगर ये देखें हम, दिस इज़ माई xp1 एंड दिस इज़ माई x1. ठीक है, अगर ये x1 इधर जा रहा है और xp1 इधर जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ xp1 अगर मैं इसे रेस्ट पे मान लूँ तो ये पूरी लेंथ को बढ़ाएगा xp1, और अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूँ और x1 इधर मूव करेगा, सो बिकॉज ऑफ x1 मूवमेंट ये लेंथ इसकी कम हो जाएगी, द लेंथ विल बी रिड्यूस. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन, बिकॉज वी हैव रिटन तो डेल्टा x में जो चेंज आएगा, इसमें डेल्टा x में चेंज आएगा, वी कैन से कि x1 बिकॉज ऑफ दिस x1 मूवमेंट दिस लेंथ इज गोइंग टू रिड्यूस. ठीक है, सो वी कैन पुट डाउन माइनस, और बिकॉज ऑफ दिस x1 मूवमेंट दिस लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पे इसकी वजह से ये इधर पुश करेगा ये वाला पॉइंट, तो जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज करेगा. सो वी हैव पुट प्लस xp1. ठीक है, सेम हम अब इसमें देखते हैं. इसमें क्या है, 2 मूवमेंट हो रहा है मेरा, एक इधर की साइड में हो रहा है बिकॉज ऑफ xp2 इस पॉइंट का, एक 3 पॉइंट का हो रहा है बिकॉज ऑफ xp1, एंड दोनों की वजह से लेंथ इंक्रीज होगी इन दोनों वजह से. सो दोनों वी हैव पुट इट पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव लिख दिया बिकॉज दोनों की वजह से मेरा 3 और 4 के बीच का जो सेगमेंट है दैट इज़ इंक्रीजिंग. अब हम देखेंगे L5 6 में देखते हैं, इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे 6 पॉइंट का, बट यहाँ पे सो ये मैंने 0 रख दिया है यहाँ पे +0, और इसकी वजह से क्या है, मेरा इन दोनों के बीच की लेंथ कम होगी बिकॉज x इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की लेंथ कम होगी, तो मैंने रख दिया -xp1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 7 और 8 के बीच में. 7 और 8 में इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, 0 हो गया. इसकी वजह से ये वाला पॉइंट नीचे मूव कर रहा है xp2, जिसकी वजह से ये 8 पॉइंट नीचे मूव करेगा, जिसकी वजह से लेंथ विल गोइंग टू गेट इंक्रीज. सो आई हैव पुट xp2. ठीक है, सो ये मेरे सारा डेल्टा आ गया. इन चारों सेगमेंट में कितना चेंज आया बिकॉज ऑफ दिस पुली एंड माई ब्लॉक मूवमेंट. अब मेरे को सबको ऐड कर देना है, दैट शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज आई नो माई स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल है, जिसकी वजह से मेरा चेंज इन स्ट्रिंग नहीं होगा. सो आई पुट ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, सो इसको इक्वल टू 0 किया, सो यहाँ पे इन सबको ऐड किया, ये इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस. नाउ जो मेरा फाइनल आंसर आया, सो दिस इज -x1 प्लस xp1 और ये 2xp2, ये आंसर आ गया. ठीक है, और इसको मैंने डिफरेंशिएट और डबल डिफरेंशिएट किया, सो a1 आ गया. सो इन तीनों के बीच में रिलेशन आ गया मेरा ऑब्जेक्ट 1, पुली 1 और पुली 2, और पुली 2 मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू माई a2, पुली 2 की मेरा पता है इक्वल टू a2. सो माई x1 इज a1, AP यहाँ पे मेरा xp1 की जगह है पुट AP1, डबल डिफरेंशिएट कर दिया हेयर AP2. ठीक है, यहाँ से इन तीनों में मेरा रिलेशनशिप आ गया. आई पुट A1, यहाँ पे मैंने A1 निकाला था विच इज़ व्हाट, A1 इज़ -a2 है, तो आई पुट इट A2. यहाँ पे
दिस रिलेशनशिप इज देयर ना, A1 इज इक्वल टू माइनस A2. सो यहाँ पे माइनस A1 इज इक्वल टू A2, माइनस A1 को मैंने A2 लिख दिया. ठीक है, माइनस A1 A2, ये AP1 हो गया, और ये मेरा AP2 इज ऑलरेडी, AP2 इज इक्वल टू G विच इज इक्वल टू A2. तो मैंने यहाँ पे इसको भी आई पुट इट A2. ठीक है, I put it A2, and A2 is what? G. So this is also G, this is also G, so it has become 3G. So AP1 आ गया minus 3G, right? AP1 आ गया minus 3G. So that's how we have to solve it through the segment method. This is our segment method, right? So first method we will look for the virtual work method. अगर virtual work method हमारा work नहीं कर रहा, then we go with the segment method. So almost all the problem will be solved with these two methods. ठीक है, first approach is virtual work method, right? So this is a segment method which we have applied, and we have got the value of AP here. So this is an interesting question. Just go through it, go through this question again. Okay. So now we'll see कि एक formula देख लेते हैं हम लोग. On formula is derived from the segment method only. So suppose this is XP which is moving in this direction, and XA suppose it is moving in downward direction. ये दोनों block ले लो यहाँ पे, and both the blocks are moving with A एंड दिस पुली इज ऑल्सो मूविंग विद दे. तो इन तीनों के बीच में जो मेरा रिलेशनशिप होता है ना, दिस XA, XB और X पुली, अगर पुली भी मूव कर रही है, दैट इज XP इज इक्वल टू XA प्लस XB बाई 2, अगर ये दोनों नीचे की डायरेक्शन में है. अगर एक ऊपर की डायरेक्शन में है तो रिलेशनशिप आता है जो XP हो गया. सो यहाँ पे मैं वेलोसिटी भी ले सकता हूँ. वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अगर एक पॉइंट रेस्ट पे है तो आई टेक दैट वैल्यू 0. सो यहाँ पे अगर ये नीचे है तो XP इज इक्वल टू XA बाई 2. ठीक है, so this is a direct relationship if my blocks and pulley is moving. ठीक है, that's a direct relationship. और ये relationship आया कैसे है? Same way कि I'll consider these two segments. ठीक है, 1 2 3 4, और इनमें डेल्टा एल निकालूंगा बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ XP, बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ XA, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ XB. विल टेक आउट द डेल्टा एल एंड वी ऐड द डेल्टा एल एंड वी गेट दिस रिलेशनशिप. ठीक है, आई जस्ट शो यू हाउ. सपोज दिस पॉइंट इज देयर, दिस पॉइंट इज देयर. सो दिस सेगमेंट में XP की वजह से क्या होगा, अगर मैं ये वाला सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूँ तो दिस इज माई L1, दिस इज माई L2. ठीक है, डेल्टा L1 डेल्टा L2. तो डेल्टा L1 कितना होगा मेरा, बिकॉज ऑफ XP इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, सो माइनस XP. ठीक है, XA की वजह से इंक्रीज होगा प्लस XA. ठीक है, सेम वे डेल्टा L2 देखता हूँ मैं, डेल्टा L2 में XP की वजह से क्या होगा, कम होगा, XP माइनस XP. डेल्टा 2 की वजह से क्या होगा, बढ़ेगा, X2 XB. अब इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करके आई विल पुट इट 0. सो माई आंसर विल बी माइनस 2 XP प्लस XA प्लस XB इज इक्वल टू 0. आई विल टेक XP हेयर एंड आई डिवाइडेड बाई 2. सो आई हैव गॉट XP इज इक्वल टू XA प्लस XB बाई 2. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. सो सेम वे यू कैन डू इट हेयर एंड सेम वे यू कैन डू इट हेयर बाय दिस सेगमेंट मेथड. सो इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला. अगर आपको सिंपल ऐसे दे रखा है कि एक पुली है ये, ठीक है, इसके नीचे एक और पुली है and this pulley is connected, so you can say okay, this pulley is moving with some acceleration, with some velocity. This pulley is moving with some, this block is moving down with some velocity to v1. और इसका अगर निकालना है आपको velocity, so you can directly use this formula. अगर आपको इसका for this block if you have to find out the velocity, you can directly use this formula. ठीक है, so movable pulley and X और B के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप निकालना, यू कैन यूज़ डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, और अदरवाइज यू कैन गो विद द सेगमेंट मेथड एंड इट इज़ अगर ये डायरेक्ट, अगर जल्दी आंसर निकालना है तो यू कैन यूज़ द डायरेक्ट, और अदरवाइज सेगमेंट मेथड इज देयर विद यू. ओके, राइट. सो नाउ विल मूव ऑन, विल सी सम क्वेश्चंस ऑन पुली एंड दिस पुली स्ट्रिंग एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट्स. ओके, सो यहाँ पे दे रखा है मेरे को कि दो ब्लॉक हैं, अगर मैंने इसको F मूव किया, सो आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ A एंड एक्सेलेरेशन ऑफ B. ठीक है, दोनों की एक्सेलेरेशन निकालनी है. सो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या होगा मेरा, तो इस डायरेक्शन में F माइनस, इस पर कितनी टेंशन लग रही है, दिस T, दिस विल बी, ये एक ही स्ट्रिंग है, सो इस पर सब पे टेंशन T ही होगी. ठीक है, सो इधर T आ गई, इधर 2T हो गई, बिकॉज T विल बी हेयर, T हेयर होगा, इसका ये 2T आ जाएगा. सो 2T हेयर, T हेयर एंड T हेयर, सो 4T इस डायरेक्शन में होगा. तो आई कैन राइट इट डाउन, F माइनस 5, सॉरी दिस 1 2 एंड दिस विल बी 2 ना, इसकी भी टेंशन आएगी, इसकी भी. तो 2T इधर होगी, 2T इधर होगी एंड T. सो टोटल यहाँ पे 5T. F माइनस 5T इज इक्वल टू 3 टाइम्स मास है, 3 टाइम्स M इंटू AB. ये पहले इक्वेशन आ जाएगी. और यहाँ पे टेंशन कितनी है मेरी, दिस इज 2T
इन दोनों की वजह से, एंड इन दोनों की वजह से हेयर ऑल्सो 2t, सो 4t। ठीक है, यहाँ पे आ गई 4t इज इक्वल टू 40 इंटू एम इंटू एक्सलेशन ऑफ ए। ठीक है, दो इक्वेशन बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ हो गई। अब मेरे को थर्ड रिलेशनशिप निकालना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सलेशन ऑफ ए एंड बी। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, बिकॉज टेंशन टी ए एंड टी बी, थ्री अननोन आ गए मेरे पास, तीन इक्वेशन आ जाएंगे, वी कुड एबल टू सॉल्व इट। सो लेट्स गेट द रिलेशनशिप between B and A. We'll first use the virtual work method. Virtual work method में मेरा क्या होता है, वर्क डन बाय टेंशन वर्क डन पूरा सिस्टम का जीरो होता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर ये x इधर मूव किया, एक्स बी, ये एक्स ए इधर मूव किया। ठीक है, लेट्स सी, सो ये अगर एक्स बी इधर मूव किया, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में, ब्लॉक पे ना, अवे फ्रॉम इट। ठीक है, सो -5t बिकॉज टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन 5t, सो -5t इंटू एक्स बी इधर मूव किया, प्लस इधर की डायरेक्शन में टेंशन इधर ही है, तो 4t टेंशन, ये वाली 2t, ये वाली 2t, 4t इंटू, और ये x से इधर मूव किया। सो इन दोनों के बीच में मेरा रिलेशनशिप आ गया। आफ्टर डूइंग दिस, एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ एक्सलेशन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से मेरा रिलेशनशिप आ गया। सो 3 क्वेश्चंस हो गई, थ्री अननोन्स हो गए, देन आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई। सो यहाँ से मेरा टेंशन आ गया, दिस वन ma/4, यहाँ से मैंने एक्सलेशन की वैल्यू उठा के डाल दी। सो दिस इज माई टेंशन आ गई मेरी ए बी के रिलेशनशिप में। I'll put it here, tension, this tension I'll put it here, and I've got the AB in terms of F and M, which is known to us. So same way AB आ गया, just put it back here and you've got AA, और tension आप यहाँ से निकाल लो, I just put the value of AB here, you get the value of tension। ठीक है, so 3 क्वेश्चन आ गई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, and this is my क्वेश्चन नंबर 3। अननोन कितने हैं, A, AB and T, 3 अननोन, you could able to solve। okay, सो पहला मेथड हमेशा जस्ट राइट बाय वर्चुअल मेथड। अगर टेंशन सेम है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे वी हैव सीन इन दैट वन के टेंशन हमने जब कैलकुलेट किया तो वी कुड एबल टू फाइंड आउट टेंशन इज कमिंग ईदर जीरो और टेंशन विल नॉट बी सेम। सो इन दोज केसेस यू हैव टू गो विद द सेगमेंट मेथड, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो वेज कंस्ट्रेंट में क्या था, हम लोगों ने ऑलरेडी जब हम कनेक्टेड बॉडी मोशन पढ़ रहे थे थ्रू नॉर्मल, सो इन दैट ऑल्सो वी समहाउ काइंड ऑफ स्टडी द वेज कंस्ट्रेंट। उसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरे दो ब्लॉक्स हैं, इफ इट्स मूविंग अलॉन्ग विद द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग अलॉन्ग विद द वेलोसिटी v। ठीक है, सो जो सरफेस होगा ना इसका कनेक्ट का, इसकी जो वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर, इसकी वेलोसिटी अगर ये कनेक्ट में है दोनों सरफेस, तो डैट मीन्स इस वाले जो ब्लॉक की वेलोसिटी परपेंडिकुलर और इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होगी सेकंड की, इट शुड बी सेम, दिस शुड बी इक्वल टू सेम। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा, इन दोनों में रिलेटिव डिस्टेंस आ जाएगा एंड दे आर नॉट इन द कॉन्टैक्ट। अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट हैं, दैट मीन्स जितना ये मूव कर रहा है उतना ही ये मूव कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। सो देयर इनका डिस्प्लेसमेंट, इनका वेलोसिटी, इनका एक्सलेशन, इट विल ऑलवेज बी सेम अलॉन्ग द परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस। ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीन रिटन, सरफेस कॉन्टैक्ट ऑलवेज। अगर सरफेस में ऑलवेज कॉन्टैक्ट है इन दोनों में, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉन्टैक्ट मस्ट बी सेम। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो गई, अगर इधर 10 आ गई, इधर 8 आ गई, सो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, सो 2, सो दैट मीन्स दिस ब्लॉक विल मूव फॉरवर्ड और ये ब्लॉक पीछे रह जाएगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पे नॉर्मल खत्म हो जाएगा, इन दोनों के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। सो अगर सरफेस कॉन्टैक्ट है तो इन दोनों की जो इसकी मोशन होगा, ठीक है, सेम इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो इसकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, सपोज v1 इज देयर, इधर वेलोसिटी परपेंडिकुलर v2 है, सो दिस v1 शुड बी इक्वल टू v2, सेम वे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 2। सो हियर इट्स अ सिंपल सरफेस है, तो हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सरफेसेस पे देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सरफेस देखते हैं। सपोज दो ब्लॉक्स हैं, एक ये ब्लॉक है, ठीक है, और दूसरा ये ब्लॉक है, और ये दोनों कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, और मुझे दे रखा है ये एंगल थीटा, और ये दोनों कॉन्टैक्ट में है। सो दिस मीन दे कॉन्टैक्ट में है, देयर विल ऑलवेज बी कॉन्टैक्ट। सो इफ़ यू सी फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वर, दिस ब्लॉक विल मूव इन, बिकॉज इस पे ऊपर की वजह से नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, विच विल गिव अ कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन नॉर्मल, सो जिसकी वजह से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 मूव करेगा और ये नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी A2। ठीक है, इट विल कमिंग डाउन A2, ये A2 से नीचे आ रहा होगा, ये A1 से इधर जा रहा होगा। नाउ जो सरफेस है, अगर ये दोनों सरफेस इन दोनों का अगर कॉन्टैक्ट में है, सो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, A2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ A1 इन दिस डायरेक्शन, देन ओनली दे विल बी इन कॉन्टैक्ट। अगर इन दोनों के जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एक्सेलरेशन में कुछ वेरिएशन आ जाएगा, देन दे विल नो लॉन्गर बी इन कॉन्टैक्ट। बट हमारे को दे रखा है 1 and 2 विल ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट, सो दैट जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों की एक्सेलरेशन विल बी सेम। ठीक है, इन दोनों की एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो अब हम इसका कंपोनेंट
along this direction निकालेंगे, इसका component along this direction निकालेंगे and we equate that and that will give us a constraint relationship. ठीक है. So this is my surface. So यहाँ पे it is moving down with acceleration a2. This is my theta. And this theta, it has become a2 cos theta in this direction and a2 sin theta in this direction. a2 sin theta and this is my a2 cos theta. ठीक है. a2 cos theta because this is theta. अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर देखेंगे, so this is theta, so this angle will be theta. This angle comes out to be theta. This is theta. This is 90 minus theta. This is 90, so this will be theta. ठीक है, ये theta आ जाएगा. So this is theta. So यहाँ पे आ गया a2 cos theta in this direction perpendicular to surface. Now we'll see for the surface this second block के लिए ये surface हो गया. ये it is moving here with acceleration a. ठीक है, अब इसका देखते हैं. This is making an angle theta here. ठीक है, this is making an angle theta here and इसका perpendicular आ जाएगा this a1 sin theta इस direction में. This is a1 sin theta. Now this a1 sin theta should be equal to this a2 cos theta so that they will always be in contact. ठीक है, that is what we have done. a2 cos theta इस direction में इस block का a2 cos theta और इस block का इस direction में acceleration a1 sin theta, that should be same. That has given us the relationship a1 is equal to a2 cot theta, right? So through the surface contact we have got this relationship in the wedge constraint. ओके, कुछ एक और देखते हैं क्वेश्चन हम वेज कंस्ट्रेंट के ऊपर. कुछ एक और डिफरेंट सेट ऑफ आर सरफेसेस देखते हैं. सो सपोज पहली बॉडी ये है, दूसरी बॉडी मेरी ये है. ठीक है, इट इज़ केप्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन. सो दैट मीन्स इट हैज़ टेंडेंसी टू मूव हेयर. ये इधर मूव करेगा. ठीक है, ये इधर मूव करेगा एंड दिस ब्लॉक इज़ देयर एंड इट इज़ बीन सपोर्टेड बाय दिस. इसके यहाँ पे इट इज़ बीन सपोर्टेड बाय दिस एल बार्स, जिसकी वजह से दिस मोशन जो होगा इसका a1 का मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड डाउन ओनली. सो 1 का मोशन इधर और इधर नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस. सो इट विल कम डाउन हेयर विद a1 और ये जो a2 होगा इट विल गो डाउन. दिस इज बिकॉज a2 कैन नॉट गो इन एनी अदर डायरेक्शन. सो दिस इज द मोशन ऑफ a2 ओनली. ठीक है, सो a2 इस डायरेक्शन में जाएगा. नाउ सरफेस इज दिस. अब इस सरफेस में ये a1 मूव कर रहा है. सो इसका जो होगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में b2 का a2 का वो भी a1 के बराबर होगा. देन वी कैन से दे विल मेंटेन द कॉन्टैक्ट. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो a1 इस डायरेक्शन में आ गया इसका. इस सरफेस के ये मूव कर रहा है a2. ये एंगल थीटा है मेरा. सो a2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ गया. सो a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट. ओके, राइट. अब सेम देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कि एक वेज है, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन है, इसके ऊपर मास रखा हुआ है. ठीक है, सो दिस मास इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद वेज. वो तभी होगा जब मास की ये वाली डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगी, सपोज ए वाई इफ आई टेक दिस इज वाई दिस इज एक्स, अगर मास की जो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगी दैट शुड बी इक्वल टू दिस एक्सेलेरेशन ऑफ वेज. ठीक है, वेज की इस डायरेक्शन में. सो वेज की इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितनी होगी? इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, this is 90 minus theta, this will be 90 minus theta, so it will be a sin theta. ये आ जाएगा a sin theta. ठीक है, सो ये वाली डायरेक्शन में जो वेज की वेलोसिटी होगी दैट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन बिकॉज सरफेस ये है. देन ओनली दे विल बी इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, और मुझे दे रखी है वेज की एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में. सो मास की ब्लॉक की एक्सेलेरेशन स्मॉल m की ए वाई ये हो गई इस डायरेक्शन में और इसकी हो गई ये a इस डायरेक्शन में आ गई a sin थीटा. ए साइन थीटा. ठीक है, ए साइन थीटा. सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. जो इसकी मास की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. देन ओनली दे विल बी इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव फाइंड आउट. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. सो सेम हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा था उसी का एक वेरिएशन है. सपोज ये एक वेज है एंड दिस इज माई रॉड विच इज़ देयर और इसके ऊपर साइड में गाइड्स लगाए हुए हैं ताकि इसका मोशन जो है कंस्ट्रेंट इसी डायरेक्शन में रहे. सो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन दिस डायरेक्शन रॉड एंड द वेज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन गिवन टू अस. सो सरफेस है, सरफेस जो वेज की जो ये रॉड की है इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन और इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन शुड बी सेम. देन ओनली ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम रहेगी. देन ओनली the rod and the wedge will be connect. ठीक है, that is what we are going to get one relationship. और उसके बाद हमें a rod और a wedge निकालनी है. तो हमारे पास 3 रिलेशनशिप आएंगी. n होगा एक अननोन और 2 ये अननोन होंगे. विद दीज 3
वी कैन 3 इक्वेशन आ जाएंगे, वी कुड एबल टू सॉल्व ए वेज एंड ए रॉड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते हैं। जो ए नीचे आ रहा है रॉड, इसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन और ए की इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, इट विल बी सेम, सो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। सो सपोज दिस इज माई अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा, तो इस डायरेक्शन में आ गया ए कॉस अल्फा से, अगर ये ए है तो दिस इज ए, दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी ए साइन अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया कैपिटल ए साइन अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉस अल्फा, स्मॉल ए आ गया मेरा कैपिटल ए tan alpha. This is my constraint relationship between A and A. This is my constraint relationship between A and A. Now we'll find out, we'll apply the Newton's laws on this rod and this, and we can get 3 equation and we'll finalize the value of A rod and A wedge, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं FVD on M लगाते हैं। इस पे मास एक इधर लग रहा होगा और एक नॉर्मल आ रहा होगा फ्रॉम द वेज दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। नाउ दिस डायरेक्शन में दिस इज अल्फा, तो एन कॉस अल्फा ऊपर आ गया, एन साइन अल्फा इधर आ गया, एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इधर 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 एक, बिकॉज इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो देयर सम एक्सेलेरेशन इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक एफ गाइड भी इधर आ रहा होगा इसको, मतलब जो इसको इधर मूव करने से रोक रहा होगा, बिकॉज इट इज़ मूविंग हेयर। सो बिकॉज इट इज़ इफ़ वी सिट ऑन हेयर, सो देयर विल बी अ pseudo force coming up here, so जिसकी वजह से इधर मूव कर रहा होगा, और because some normal reaction will be coming from this side, but we don't have to find out that, we have to work in this direction only, fy direction, don't have to find out anything on this direction, ठीक है, हमें इसी डायरेक्शन में करना है। so we don't need to get to know the value of this f guide, but we have applied it here f guide, ठीक है। इस पर नॉर्मल आ गया इधर, एम जी आ गया इधर, नॉर्मल को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंड ये वाला मेरे को पता है इसमें इसकी डायरेक्शन ए वाई है, सो आई कैन राइट इट डाउन एम जी माइनस एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए। सो एम जी माइनस एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए। अल्फा मुझे गिवन है, ए आई हैव टू कैलकुलेट एंड एन इज नॉट गिवन, सो 2 अननोन इधर हैं, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं अभी हमारी। तीसरी इक्वेशन हम लोग वेज पे लगा के निकालते हैं, ठीक है। वेज पे क्या आएगा, एक नॉर्मल एक इधर आ रहा होगा, एक एम जी इस पे नीचे लग रहा होगा, एक नॉर्मल इधर आ रहा है, एक नॉर्मल इस पे ग्राउंड से आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ माई नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज़ माई एम जी एंड दिस इज़ माई नॉर्मल, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द रॉड। कम वी ब्रेक इट डाउन, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, सो एन कॉस अल्फा इधर आ गया और एन साइन अल्फा इधर आ गया, ठीक है। नाउ आई नो दिस एन साइन अल्फा इज ओनली मूविंग दिस वेज, एक ही फोर्स है इस डायरेक्शन में, सो एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एम ए, एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए, एम कैपिटल ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गई मेरी, एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एन इज माई दिस, okay, we don't need this n1, but anyway if we have to find out this n1 is mg plus n cos alpha, but we have got 3 equation 1 2 and this 3 equation, इन तीनों से मेरा n a और we can find out a and a with these 3 equations, ठीक है। 3 अननोन है मेरे, n अननोन है एंड a स्मॉल a अननोन है एंड कैपिटल A अननोन है, ठीक है। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, इफ यू सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a एंड कैपिटल A, ठीक है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट द ए की वैल्यू यहाँ पे ए टेन अल्फा डाल दो, ठीक है, यहाँ से एन निकाल दो और एन की वैल्यू यहाँ डाल दो, जो कि ए की टर्म्स में आएगी कैपिटल ए की। सो वहाँ से आप कैपिटल ए निकाल लो और कैपिटल ए निकाल के जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे ए की वैल्यू यू पुट इट हेयर, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू डाली, जिसकी वजह से यू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम हेयर, ठीक है। एन की वैल्यू जो आएगी इट इज़ एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। नाउ यू पुट दैट एन वैल्यू हेयर, और यहाँ से आपके पास ये भी ए का फंक्शन है, ये ए में है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हेयर, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी नोन में, और फिर वो ए की वैल्यू उठा के आप इसमें डाल देना एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ ए। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ए ऑफ रॉड एंड ए ऑफ वेज, राइट। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द पुली एंड वेज सिस्टम्स। सो विल सी द पुली एंड वेज सिस्टम्स। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी, जस्ट 5 सेकेंड, जस्ट हैव सम वाटर। सो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं पुली वेज सिस्टम। इसमें क्या है हमारा, विल स्टार्ट विद दिस कि दिस माई वेज,
ठीक है, यहाँ पे पुली लगी हुई है एंड दिस स्ट्रिंग से दिस मास इज कनेक्टेड। इसके अंदर क्या है ना, हमारा रिलेटिव मोशन आएगा बिकॉज द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी हैपनिंग विद दिस मास एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था हाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि किसी भी अगर इफ अ बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी तो उसका अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है व्हाट वी हैव टू डू, सो दैट्स हाउ वी डू कि अगर मेरे को इस m का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक वेज दे रखा है तो आई हैव टू फाइंड आउट दिस m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कैसे निकालते हैं, m acceleration of m with respect to ground is acceleration of mass with respect to this block with respect to wedge। ठीक है, acceleration of this m with respect to wedge। ठीक है, वेज के रिस्पेक्ट में निकाला, फिर एक्सेलेरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया एंड आई गॉट द एक्सेलेरेशन ऑफ m with respect to ground। So that is the logic we are going to apply it here। We have seen this logic many times जब हम relative motion देख रहे थे अपना kinematics 2D में। There also we have seen it many times। We have done lot of tons of question on this logic also कि अगर किसी के relative में मेरे को दे रखी है velocity या acceleration और मेरे को ground के respect में चाहिए तो मेरे को जिसके relative में दे रखी है उसकी velocity ऐड करूँगा प्लस object की suppose I'll give you with an example। So this is moving with 10 meter per second and this is moving with इसके रिलेटिव इट इज़ मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व करूँगा सो ग्राउंड से कैसे मूव करेगा, ये जो ये 2 मीटर पर सेकेंड है इसकी 1 की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, सो इसकी स्पीड आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 1 की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी मेरी दैट इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू जो ब्लॉक 2 के अकॉर्डिंग चल रहा होगा 2 प्लस स्पीड ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी 12। सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ब्लॉक 12 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ दिख रहा होगा। दैट इज़ व्हाट द लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई कि वी जस्ट सुपर इम्पोज के जो मेरा जो फ्रेम है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू माई ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम वी गेट द फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हेयर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। ये वेज है, ठीक है, सपोज ये वेज मूव्ड हेयर विद ए। ठीक है, ये वेज इधर ए से मूव किया सो लेट्स सी अगर ये ए इधर मूव करेगा सो दिस स्ट्रिंग विल स्ट्रेच अप हेयर ए सो इधर विल अप्लाई इट विद आर वर्चुअल वर्क मेथड। सो वर्चुअल वर्क मेथड देखते हैं, अगर ये एक्स इधर मूव कर रहा है ये वाई इधर मूव कर रहा है सो लेट्स सी। सो टेंशन इसमें ये है सो माइनस टी वाई प्लस इधर टेंशन मेरी टी है सो टी एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरा आ गया टेंशन सो जितना ये एक्स इधर मूव करेगा उतना ये इधर मूव करेगा वाई। ठीक है, सो एक्सेलेरेशन ऑफ ए ये सेम एक्सेलेरेशन इसकी इधर होगी बट दिस एक्सेलेरेशन ऑफ एम विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ मास ये जो स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ बिग एम। सो एक्सेलेरेशन ऑफ दिस एक्सेलेरेशन जो आएगी मेरी यहाँ पे दिस ये जो एक्सेलेरेशन आई है दिस इज रिलेटिव एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मास। ठीक है, ये जो ब्लॉक की एक्सेलेरेशन है दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज आई है। ठीक है, अब यही मेरे को एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, अब यही मेरे को एक्सेलेरेशन जो इसकी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। ठीक है, अब ग्राउंड की निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, दिस फॉर्मूला कि फ्रेम का पहले ऐड करूँगा प्लस इसकी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम करूँगा देन वी गेट इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ small m with respect to ground is relative velocity of small m with respect to m, that is nothing but my ai. Suppose I take this direction as x, this direction as y, so this is my ai. ठीक है, so this is x, this is y, so I take it positive, so this is my इस direction में move कर रहा है मेरा ये relative velocity of m with respect to m is my ai. ठीक है, now relative velocity of mass this m with respect to ground is in this direction, I break it down in this and this direction. ठीक है, इस मेरे को along the incline चाहिए और perpendicular to incline, तो I'll break this down in this and this direction. इसको break किया so this is my theta, ये theta हो जाएगा so this will be a cos theta in this direction, माइनस आई डायरेक्शन में a cos theta हो जाएगा माइनस आई डायरेक्शन में, और ये j डायरेक्शन में a sin theta हो जाएगा। ठीक है, नाउ मैं ये ब्लॉक की वेलोसिटी ब्लॉक की एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू मास m प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम this wedge or this bigger mass with respect to ground is we have calculated is here, this is minus a cos theta a plus a sin theta j. ठीक है, now we combine this x direction and y direction. so x direction में मेरी wedge की स्मॉल ब्लॉक की स्पीड स्मॉल ब्लॉक की एक्सेलेरेशन आ गई a 1 minus cos theta that is ax
अलॉन्ग दिस एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ गई, और अलॉन्ग दिस वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ गई मेरी ए साइन थीटा, राइट। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई मेरी एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को, और ये एक्स में, ये वाई में, ये मेरी स्पीड आ गई, ठीक है। सो समवेयर लाइक ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन में समथिंग कुछ, ठीक है, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। एनीवेज ये एक्स डायरेक्शन की आ गई, वाई डायरेक्शन की आ गई। नाउ विल सॉल्व। अब रिलेशनशिप आ गई मेरी फर्स्ट के इसकी मास की और माई दिस वेज की एक्सेलेरेशन की, और इसकी एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरी रिलेशनशिप आ गई। नाउ टू मोर थिंग्स आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई द Newton's laws on this, and then we can calculate the value of this acceleration also, this a also, and this also we can calculate. Okay, ax and ay also we can calculate. Let's see. So पहले वेज देखते हैं। वेज पे इसकी वजह से एक नॉर्मल आ रहा होगा, इसका अपना मास होगा, एक इसको ग्राउंड से नॉर्मल मिल रहा होगा n1, ठीक है, एक n यहाँ से आ रहा होगा, एक इसका mg होगा, ठीक है, और एक ये इस पर टेंशन इधर आ रही होगी, ठीक है। दिस 4 फोर्सेस विल बी देयर, टेंशन आ गई इधर, mg आ गया, ठीक है, एक टेंशन ऐसे आ रही होगी इस पर, दिस टेंशन, और n इस पे इधर आ रहा है, तो n का कंपोनेंट कर लिया मैंने, दिस इज थीटा, n कॉस थीटा, और n साइन थीटा आ गया। नाउ वी सी कि इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका इस डायरेक्शन में देखेंगे हम, t ये दिस इज मूविंग ma इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज t, और इस डायरेक्शन में t, ये इस डायरेक्शन में मेरा t है, दिस इज ऑल्सो t ना, दिस इज ऑल्सो t, सो इस डायरेक्शन में भी t है, सो दिस विल बी थीटा, सो दिस इज t कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा t कॉस थीटा, t माइनस t कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में प्लस n साइन थीटा इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग विद ma। सो दिस माई न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया मैंने ऑन द वेज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ गई मेरी। अब दूसरी क्वेश्चन मैं निकालूंगा इसके, ये टू डायरेक्शन जो मेरी आएगी, इधर ax और इधर ay, जो मेरा मूवमेंट कर रहा होगा ये मास, इसका निकालूंगा मैं। तो पहले इसका एफ बनाते हैं। इस पर फोर्सेस आ रही होंगी, पहले नॉर्मल इधर लग रहा होगा, वेज से अपना मास आ रहा होगा, इधर टेंशन से ये पुल हो रहा है, ये तीन इस पर फोर्सेस हैं, इसको मैंने mg को ब्रेक कर दिया अलॉन्ग द इंक्लाइन mg साइन थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इज mg कॉस थीटा। नाउ इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलेरेशन इज x, इस डायरेक्शन में y, सो x में देखते हैं, x में आ गई mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू max को मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं, इट इज mg कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा माइनस n इज इक्वल टू may, ठीक है। सो मेरे पास नाउ a इज अननोन, तीन इक्वेशन आ गई, दिस एंड दिस, ठीक है, दो अननोन है मेरे पास, यहाँ पे t अननोन है, एंड माई n इज अननोन, एंड दो इक्वेशन है मेरी, तीन इक्वेशन है एंड तीन अननोन्स है, एंड वी कुड एबल टू सॉल्व दिस नाउ, ठीक है। माई अननोन आर t, n एंड a, दिस a, ठीक है। सो नाउ ax ay को मैंने a के टर्म्स में लिख दिया, ax मेरा a 1 माइनस कॉस थीटा था, ay 1 माइनस साइन थीटा। नाउ माई इक्वेशन 1 इज दिस, वेयर माई अननोन इज दिस एंड दिस, ठीक है, एंड दिस सेकेंड इक्वेशन इज दिस, अननोन ये आ गया t, एंड ये यहाँ पे आ गया, सेम एयर n एंड a। सो इन तीनों को आई जस्ट do the calculation, it just evaluated, and I've got the value of a as mg sin theta divided by m plus 2m 1 minus cos theta, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करना है, and we get the value of a, that is what we have to find out, this acceleration of a, the acceleration of which was supposed to be find out, so we have calculated it here, right। so जब भी again जो इसमें जो मेजर कंसेप्ट था, that is if a body is moving with respect to frame, so we have to find out is its motion with respect to ground, ठीक है। that is the most important concept that we have to apply it here in pulley wedge or any other motion where the object is moving with respect to some frame, ठीक है। so उसका ground पे पहले निकालना पड़ेगा मेरे को, right। so इधर भी हम लोगों ने वही किया, and we find out equation and we solve it, right। so let's see some examples, ठीक है। विल सी सम 4-5 एग्जाम्पल्स एंड देन वी, तो पहले देखते हैं हम, ये मास है एंड इज कनेक्टेड विद पुलिस 1 2 3 4, ठीक है, और ये स्मॉल मास मेरा m है विच इज़ कनेक्टेड हेयर, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है। सो मेरे से पूछा गया है, आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलेरेशंस, ठीक है, इस a1 निकालना है मेरे को, आई हैव टू फाइंड आउट दिस a1,
राइट। दिस एक्सेलेरेशन निकालनी है A1 एंड दिस A2, ये दोनों एक्सेलेरेशन निकालनी है, ठीक है। नाउ दिस इज़ कनेक्टेड विद वेज, ये वेज से कनेक्टेड है, तो इसकी जो होगी दो डायरेक्शन में मोशन होगा इसका भी, बिकॉज इट इज़ कमिंग डाउन ऑल्सो, एंड विद रिस्पेक्ट टू वेज इट इज़ कमिंग डाउन हेयर, एंड हेयर द वेज की डायरेक्शन होगी। सो दिस ब्लॉक विल बी हैविंग टू मोशन, A1 इधर होगा और A2 इधर होगा, ठीक है। बिकॉज दिस A2 इज विद रिस्पेक्ट टू वेज इट इज़ कमिंग डाउन A2, और वेज की भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो वेज की ऐड हो जाएगी A2, इधर हो जाएगी -J प्लस A1I, ऐसे हो जाएगी इसकी जो एक्सेलेरेशन होगी। लेट्स सी, अब हम पहले देखते हैं A1 और A2 में कुछ रिलेशनशिप निकालते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग द टेंशंस। सो यहाँ पे वे सेम स्ट्रिंग है, दिस होल स्ट्रिंग इज सेम। सो यहाँ पे इस पे टेंशन आ गई 1, ये दोनों की ऐड होकर 2T, 2T, एंड हेयर इट विल बी T। सो टोटल आ गई 4T, ठीक है। सो इधर आ गई 4T, और ये x इधर मूव कर रहा है, तो 40 इंटू एक्स, और m पे कितना है मेरा, दिस इज़ मूविंग, सपोज दिस इज़ मूविंग x2 डाउन, सो x2, और ऊपर टेंशन T है, सो T माइनस x2। सो यहाँ से रिलेशनशिप मेरी आ गई इसमें A1 और A2 में, दिस इज़ A2, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1, ठीक है। A2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1, दैट इज़ द कंस्ट्रेंट रिलेशन आई एम हैविंग इन बिटवीन दिस एंड दिस। इट इज़ मूविंग डाउन विद A2 एंड इट इज़ मूविंग लेफ्ट विद A1, ठीक है। नाउ एक्सलेशन ऑफ माई दिस जो ये एक्सलेशन है मेरी मूविंग डाउन, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू मास है, ये बड़े वाले मास की वजह से, बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट है। तो अगर मेरे को इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करना है मेरे को, A ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ नथिंग बट A ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम प्लस A ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो A ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है मेरी A1 इन I डायरेक्शन, और ये कितनी है -J डायरेक्शन में A2 प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी माई AM, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। A ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी दिस, A1 इस डायरेक्शन में, A2 इस डायरेक्शन में, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी मेरी m की, ठीक है। नाउ विल अप्लाई, एक रिलेशनशिप मेरी आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ। पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, विल अप्लाई इट हेयर एंड देन विल अप्लाई इट इन द स्मॉल ब्लॉक। इसमें क्या है मेरा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमें, सो इस डायरेक्शन में मेरे को देखता हूँ फोर्सेस। सो एक की टेंशन ये आ गई, 2T ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है, और एक नॉर्मल आ जाएगा इसकी वजह से, और वर्टिकल में ये नॉर्मल आएगा, ये mg आएगा, तो बट और एक वर्टिकल में क्या टेंशन भी आएगी, ठीक है, दिस टेंशन विल ऑल्सो कम, ओके। सो 3 फोर्सेज इन वर्टिकल, इस पर एक तो mg आएगा इसका, एक ग्राउंड से जो नॉर्मल मिल रहा होगा, प्लस ये वाली टेंशन, ठीक है, ये वाली जो टेंशन होगी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, इस पर एक वर्टिकल टेंशन ये वाली आएगी। 3 आ गए मेरे यहाँ से। सो डोंट फॉरगेट दिस टेंशन ना, पीपल आई हैव सीन के समहाउ पीपल यूजुअली फॉरगेट दिस टेंशन। एक वर्टिकल टेंशन इस वाले बड़े वाले पे नीचे भी आएगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में राइट साइड में कितनी होगी, एक तो इसको नॉर्मल इस ब्लॉक से मिल रहा होगा, प्लस एक ये टेंशन इधर होगी, 2T इधर होगी और ये होगी, ठीक है। सो 4 टेंशन इधर आ जाएंगी, 4T, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका मोशन निकालते हैं, दैट इज़ 4T माइनस n, इस डायरेक्शन में नॉर्मल बिकॉज ऑफ ब्लॉक माइनस n इज इक्वल टू ma1, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आ जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक का देखते हैं। स्मॉल ब्लॉक को एक नॉर्मल इधर से मिल रहा होगा, एक ऊपर टेंशन है और नीचे mg है, बिकॉज ऑफ दिस n डैश ओनली इट इज़ मूविंग इन राइट डायरेक्शन A1, सो n डैश इज इक्वल टू ma1 इस डायरेक्शन में, और नीचे जा रहा है ये mg माइनस t इज इक्वल टू ma2, ठीक है। यहाँ से आई टेक आउट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे n डैश की वैल्यू आई जस्ट पुट इट हेयर, n डैश की वैल्यू इट इज़ ma1, यहाँ पे ma1 डाला, ये इधर चला गया, यहाँ से मेरा t की वैल्यू आ गई मेरी दिस m प्लस m a1 इंटू a1/4। ये t को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। 4 इक्वेशन है मेरे पास। पहली इक्वेशन ये हो गई, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मेरी ये हो गई जो मैंने FPD ये बड़े वाले ब्लॉक पे लगाया, और 2 इक्वेशन मेरी इन दोनों से आ गई, ठीक है, 2 इक्वेशन मेरी इन दोनों से आ गई। अब मेरे को रिलेशनशिप सब में पता है। सो यहाँ पे दिस n डैश को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ma1, इससे मेरा t आ गया, दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ t। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन दिस फोर्थ इक्वेशन एंड पुट दिस a2 एज 4a1, ठीक है। तो t भी मेरा a1 में है, एंड दिस a2 ऑल्सो आई पुट इट इन a1 एंड आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a1 एज 4/4t, सो यहाँ से a1 आ गया मेरा दिस वन 4mg बाई, बिकॉज दिस a1 में यहाँ पे t है, t इज़ अननोन। सो यहाँ पे अगर मैं दिस a2 की जगह ये डाल दूँ 4a1 और इस t की जगह ये डाल दूँ m प्लस m a1/4, तो यहाँ पे मेरे को पूरी इक्वेशन मेरी a1 में आ जाएगी।
A1 में आ जाएगी, बिकॉज नाउ T is also I put in A1 and A2 also I put in this, A2 also I put in A1. So I have only one unknown in this equation A1 and I've solved it and I've got 4 mg divided by 4 plus 17m. This is my A1. So if A1 आ गया मेरा यहाँ से, so A2 is nothing but this, 4 times of A1 is my A2, right? So that's how you have to solve it. So we'll see these two more questions, ये दो और questions देखते हैं, then after that we'll try to cover up the questions in the next lecture, ठीक है? थोड़े constraint relation के जब हम next lecture में general constraint पढ़ेंगे तो उससे पहले we'll cover up the rest of the questions. So अभी हम दो questions और देख लेते हैं. तो यहाँ पे दे रखा है हमारा कि we have been given कि पुली है, it is coming down with 10 meter per second, it is going up with 2 meters per second c. तो मेरे को ए बी और सी ए बी की पता नहीं है वेलोसिटी. तो हमने फॉर्मूला देखा था ना वो कि पुली वाला और उन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होती है दैट इज़ एक्स पी इज इक्वल टू एक्स बी. अगर ये दोनों नीचे आ रहे हैं तो एक्स पी प्लस एक्स सी बाई 2 ये फॉर्मूला था मेरा. बट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, आई डोंट नो द इसका क्या सिचुएशन है. ये ऊपर आ रहा है एंड ऐसे इफ it is going up it will come down, ठीक है? So I'll just apply the formula here. So it is 10 Vp is equal to, this is Vb minus Vc by 2. Vc ऊपर है तो it will get, so minus Vc. So यहाँ पे मेरा Vb निकालना है, Vc मैंने -2 पुट कर दिया, 2 10 इधर हो गया मेरा, Vb आ गया मेरा 22, ठीक है? we've directly put the formula which we have calculated, ठीक है? इसमें देखते हैं हम, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा. और यहाँ पे जो मेरा पुली 2 की होगी 10 वही ये 1 की होगी, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड बाय सेम स्ट्रिंग. सो वी ए विल बी इक्वल टू Vp2. सो ये 10 से नीचे जा रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा होगा, सो वी ए विल बी 10. नाउ Vb निकालना था हमने, Vb वी यूज़ दिस फॉर्मूला, Vp2 इज इक्वल टू Vb माइनस Vc बाई 2. Vc की वैल्यू 2 डाल दी, Vb की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, राइट? नेक्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट, यहाँ पे मेरे से पूछा है कि दैट्स हाउ दिस ब्लॉक इज़ कनेक्टेड विद पुली विद दिस कार एंड आई हैव बीन टोल्ड कि कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v. सो विद व्हाट वेलोसिटी दिस ब्लॉक विल बी कमिंग गोइंग अप, ठीक है? ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ऊपर, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? सो लेट अस कैलकुलेट द टेंशन इज, ये सारी स्ट्रिंग्स में द टेंशन विल बी सेम T. सो कार के ऊपर टेंशन एक तो ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, ठीक है? और इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में डाल दूँ तो इट इज़ v cos थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है? तो टोटल इस डायरेक्शन में टेंशन आ गई T प्लस T cos थीटा इस डायरेक्शन में आ गई. पर मूवमेंट मेरी इधर हो रही है तो आई कैन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर -x होगा, ठीक है? सो आई कैन टेक इट आउट, द वर्क डन हेयर बाय दिस विल बी T प्लस T cos थीटा इंटू वी कैन पुट x कर सकते हैं बिकॉज वर्चुअल में वी पुट द डिस्प्लेसमेंट, बट वंस वी डिफ्रेंशिएट इट वी गॉट v. सो आई एम डायरेक्टली पुटिंग इट v हेयर, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया v. और ये मूव कर रहा होगा, सपोज यहाँ पे भी, इस पे भी T होगी, इस पे भी T होगी, यहाँ पे 2T आएगी बिकॉज द पुली इज मासलेस. वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ T. यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है तो 2T इंटू सपोज इट इज मूविंग विद Vb, ठीक है? दैट इज़ व्हाट वी पुट. तो प्लस 2T इंटू Vb, यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज टेंशन इज देयर एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज देयर, एंगल इज 180 डिग्री, सो दैट्स वाई द माइनस. सो इधर आ जाएगा, एक तो इसका कंपोनेंट ये हो गया T, एक ये हो गया T, ठीक है? इसका कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कितना हो जाएगा T cos 60 डिग्री प्लस T, ठीक है? टोटल इस डायरेक्शन में T आ गई. यहाँ से कैलकुलेट किया, दिस इज नथिंग बट 1/2, सो इट इज़ 3/2v इज इक्वल टू 2v. एंड फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Vb, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विद 3/4 टाइम्स v. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, राइट? So few questions has been left, so we'll cover up some of the questions in the next lecture. कुछ एक questions रह गए हमारे पुली एंड वेज के और some constraints in पुली. तो कुछ एक questions हम लोग next lecture में cover करेंगे when we are going to cover up, when we are going to do the general constraint, because I told you we'll try to cover up the lecture in 1 hour 20 or 1 hour 15 minutes. That's more than enough. वो लंबा lecture हो जाता है, even I get exhausted and I know it is really difficult to read through or to grasp all this for so long. So we'll try to limit our lectures up to maximum 1 hour 15 or 1 hour 20 minutes. So that's why जो भी remaining portion होगा we'll cover up in the next lecture. और we are doing the lectures every day, so
it's not a big deal. You can see the lecture on the next day. तो so we'll take a quick review. हमने क्या क्या देख लिया आज. सो हम लोगों ने देखा आज कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप पढ़ा. हमने कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप हमने देखा कि जो बॉडी है, इफ़ द मल्टीपल बॉडीज आर कनेक्टेड, सो दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन सर्टेन डायरेक्शन एंड देयर इज अ रिलेशनशिप विद देयर मोशन. सो whenever we are applying, we are understanding the motion of the bodies, we got some equation with the Newton's second law. But whenever there are multiple bodies and they are connected through each other with some strings or with some rod or with pulleys, so there's some constraint relationship with them. So we have to calculate that constraint relationship between their motion so that we can get all the equations to calculate all the unknowns. Okay, so that is what we use the constraint relationship. So we have studied the constraint relationship with the pulley wedge and the pulley wedge system. So हम लोगों ने constraint relationship पहले तो देखा, नॉर्मल वे से विजुलाइज किया कि सपोज आई टेक दिस ब्लॉक ए अप एंड हाउ दिस ब्लॉक बी विल कम डाउन. सो वी विजुलाइज इट इन नॉर्मल मैनर, बट दिस सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हैविंग सम प्रॉब्लम्स. इसमें क्या होता है ना, जब मल्टीपल पुलिस हो जाएंगी या मल्टीपल वेट्स हो जाएंगे तो इसको विजुलाइज करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ इम्पॉसिबल. टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा एंड the thing is all about the time. ठीक है, कि जितने कम टाइम पीरियड में you solve maximum question, that is the best thing. So the race is against the time only, so it's better to solve it with some different strategy. But this is the strategy. If nothing will work, this is the final strategy. But we have seen two strategies. One is our virtual work strategy and another one is our segment strategy. उनसे हमारा 100% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. पहले हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड. उसके अंदर क्या कहता है कि we do imaginary tiny displacement. That tiny displacement total virtual work done will be 0. In our case, हमारे केस में क्या है कि work done by all the tension forces in the string is 0. Why? Because our strings are inextensible. कि जितना भी मूवमेंट मेरा यहाँ पे होगा उतना सेम मूवमेंट मेरा यहाँ पे कुछ हो जाएगा. सो ओवरऑल वर्क डन जो होगा मेरा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होके ओवरऑल वर्क डन मेरा 0 रहेगा उसमें. ठीक है, बिकॉज माई स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल. सो नेट वर्क डन बाय द टेंशन in my strings, it's equal to 0. Net work done by tension and net work done by tension in the string is equal to 0. So जहाँ जहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, आई जस्ट स्प्लिट माई टेंशन. और टेंशन का हमारा रूल क्या होता है, अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है और स्ट्रिंग है, वी अप्लाई द टेंशन. अगर एक स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन रहेगी, अगर मल्टीपल स्ट्रिंग है तो मल्टीपल डिफरेंट टेंशन हो जाएंगी. सो विद दैट वी अप्लाई, तो हम लोगों ने वी अप्लाई दिस लॉजिक, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ माई वर्क डन बाय टेंशन and that is equal to 0 and we have got the constraint relationship between the motion of two bodies. ठीक है, same way we have done it here virtual method, but here in this example we have seen virtual method is not working because our tension got 0. So here we have applied the motion, we have applied the logic of segmentation. ठीक है, segment के थ्रू हमने पहले segment divide कर ली पूरी string की और हमने देखा कि अगर बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पुली, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ माई ब्लॉक्स, सेगमेंट में अप एंड डाउन होता है, सेगमेंट की लेंथ में अप एंड डाउन होता है, बट ओवरऑल लेंथ पूरे सेगमेंट की सेम रहनी चाहिए जो पहले थी. दैट इज़ व्हाट द लॉजिक वी हैव अप्लाइड इट हेयर. सो ये क्वेश्चन देखा था हमने इस पे, बिकॉज टेंशन गॉट 0, सो वी कुड नॉट एबल टू अप्लाई द वर्चुअल वर्क मेथड एंड वी हैव गॉट थ्रू विद द सेगमेंट मेथड. ठीक है, यहाँ पे वी हैव डन इट विद द वर्चुअल वर्क मेथड दैट मेड इट्स इजी. देन वी हैव सीन द वेज कंस्ट्रेंट. वेज कंस्ट्रेंट में हमने देखा था सरफेस के थ्रू जो भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, अगर वो कॉन्टैक्ट में है दैट शुड बी सेम. अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाए, इस वाले ब्लॉक की, ब्लॉक 1 की, और इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सीलरेशन कम हो जाए ब्लॉक 2 की, दैट मीन्स द सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा इनके बीच में. और सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा दैट मीन दे विल नो लॉन्गर बी इन कॉन्टैक्ट. तो इनको कॉन्टैक्ट बनाने के लिए जितना ये ब्लॉक 1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा उतना सेम ब्लॉक 1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, देन ओनली दे विल ऑलवेज बी रिमेन इन कॉन्टैक्ट. एंड दैट वाज द लॉजिक वी हैव अप्लाइड टू सॉल्व मल्टीपल सरफेस प्रॉब्लम्स. देन इन द लास्ट वी हैव सीन द पुली एंड द वेज सिस्टम. ठीक है, पुली एंड वेज सिस्टम्स में हमने देखा कि हमारा मोशन जो है इसका विद रिस्पेक्ट टू वेज आ रहा है एंड वी कन्वर्ट इट इनटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन FBD. ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर हैविंग टू बॉडीज इन मोशन, तो जो बॉडी का जो स्मॉलर बॉडी है अगर वो किसी फ्रेम पे रखी है बिगर बॉडी के, तो वी गेट द एक्सेलरेशन और द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी, देन वी हैव टू फाइंड इट आउट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ठीक है, सो सेम हेयर वी हैव अप्लाइड द लॉजिक ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज हमारे को जो इसकी एक्सेलरेशन दे रखी थी विद रिस्पेक्ट टू दिस मास M दे रखी थी. ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव अप्लाइड इट हेयर.
अगेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इट अप्लाइड बोथ मोशन ऑफ दोनों मोशन हो रहा है बॉडी का एंड द बोथ बॉडीज आर कनेक्टेड. सो वी हैव अप्लाइड द लॉजिक ऑफ velocity with respect to frame plus velocity of frame with respect to ground to get the velocity of ground. That same logic we have applied. Along with that, we applied the virtual work method to derive the relationship between these two motion, and then we apply the Newton's laws. Here we have seen in this question we have applied the direct formula which we have calculated earlier कि अगर पुली और दोनों पुली के नीचे दो masses हैं, suppose this is pulley and these two masses are there and these two masses are moving and this pulley is also moving, and what is the relationship between this velocity of pulley and the velocity of this masses. It's a direct formula and we applied that direct formula here. Here we have seen we have split the tension कि हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने टेंशन था अभी तक हम वर्टिकल ले रहे थे, तो यहाँ पे हमारी टेंशन इस डायरेक्शन में टी आ रही थी. सो हमारा मोशन इस डायरेक्शन में वी है. सो इन दोनों के बीच में जो मेरा एंगल है वी हैव टू स्प्लिट इट अप इन दिस एंगल. सो यहाँ पे जो मेरा आ जाएगा इसको इसका इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा आ जाएगा. सो नाउ माई टोटल टेंशन इन दिस डायरेक्शन इज टी प्लस टी कॉस थीटा एंड इट इज़ इंटू एक्स. ठीक है, दिस इज माइनस बिकॉज द एंगल इज 180 degree because the force is in this direction and the movement is in this direction. So angle is minus, angle is 180 degrees, so that's why minus will come. So here we solve it through the virtual work method. So but only thing is here the string is not at 90 degree, here the string is at some angle. We resolve the angle to calculate our velocity with the virtual work method, right? So this is all for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जनरल कंस्ट्रेंट एंड विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन पुली एंड वेज कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट. इस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल डू द जनरल कंस्ट्रेंट. और फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा टू वर्कआउट विद द स्ट्रिंग्स में हाउ दैट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग्स विल वर्क एंड दोस रिलेटेड टॉपिक्स विद द स्ट्रिंग्स रह जाएंगे इन दिस पार्ट 1 ऑफ आवर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. और उसके बाद विल कवर अप ऑल द मोशन अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन. ठीक है. So I'll meet you up in the next lecture. So all right, thank you.